غزہ میں امن فوج کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ DGSPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ سہیل افریدی چیف منسٹر ہیں، بس اتنا ہی کہوں گا۔ افغان طالبان کو رسپانس فوری اور مؤثر تھا۔ جھڑپوں میں 206 افغان طالبان فوجی اور 112 خوارج مارے گئے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں 1667 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہماری طالبان گروپوں کے ساتھ لڑائی ہے۔ TTP، BLA اور دیگر تنظیموں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ اصل مسئلہ دہشت گردی، جرائم پیشہ اور TTP کا گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان نے کبھی طالبان کی آمد پر جشن نہیں منایا۔ پاکستان اپنی سرحدوں اور عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پالیسی بنانے میں خود مختار ہے۔ غزہ میں قیام امن کے لیے ترکیہ میں بڑی بیٹھک، امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اہم اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ 8 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شرکت کے لیے استنبول پہنچ گئے۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، اردن اور مصر کے وزراء خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ مشاورتی اجلاس کا مقصد غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے مشترکہ حکمت عملی طے کرنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اجلاس میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کرے گا۔ اجلاس کا مقصد خطے میں قیام امن کے لیے مسلم ممالک کے لائحہ عمل کو مربوط بنانا ہے۔ وفاقی حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی سے حمایت مانگ لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تصدیق کر دی کہ ایکس پر لکھا، وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں لیگی وفد نے صدر آصف علی زرداری اور مجھ سے ملاقات کی۔ 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی درخواست کی گئی۔ مجوزہ آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کے قیام، جوڈیشل ریفارمز شامل ہیں۔ افواج کی کمان سے متعلق آرٹیکل 243 کا ذکر ہے۔ NFC ایوارڈ، تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی وفاق کو واپس کرنے، چیف الیکشن کمیشن اور ممبران کی تقرری کے لیے ڈیڈ لاک ختم کرنے کے معاملات شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی قیادت نے مجوزہ آئینی ڈرافٹ پر قانونی ماہرین سے مشاورت کر لی۔ CEC کا اجلاس 6 نومبر کو طلب کر لیا۔ صدر آصف علی زرداری کی واپسی پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ ڈرافٹ کی اہم تفصیلات سامنے آ گئی۔ الیکشن کمیشن میں ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کے انتخاب پر آئینی ترمیم ہوگی۔ نئے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے انتخاب کا وقت متعین کیا جائے گا۔ مجوزہ اصلاحاتی ڈرافٹ میں جوڈیشل ریفارمز پر پیپلز پارٹی کی تجویز بھی شامل۔ آئینی عدالتوں کی تشکیل، ججز تقرری اور تبادلے کی شقیں ترمیم کا حصہ ہوں گی۔ بلدیاتی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کی شق بھی شامل۔ ترمیمی مسودے میں آئین کے آرٹیکل 243 میں تبدیلی کی بات بھی کی گئی، جو مسلح افواج کی کمان کے حوالے سے اہم شق ہے۔ صوبوں کے حقوق اور مختلف شعبے وفاق کو واپس دینے سے متعلق مجوزہ آئینی شقوں پر پیپلز پارٹی کو اختلاف۔ نون لیگ قیادت کی دیگر پارلیمانی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی مجوزہ ڈرافٹ پر ابتدائی تبادلہ خیال۔ MKM آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم چاہتی ہے۔ وفاق میں وزارت تعلیم کے اختیارات اور دائرہ کار سے متعلق ترامیم بھی ڈرافٹ کا حصہ ہوں گی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے NFC پر مشاورت کے لیے مجوزہ مسودہ مانگ لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، 27ویں آئینی ترمیم کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ NFC کے اثر نو تشکیل کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت بالکل لا علم ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے آئینی ترمیم پر وسیع مشاورت اور دیانتداری سے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ NFC پر مشاورت کے لیے مجوزہ مسودہ درکار ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی۔ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات کی ہے NFC، اس کو وہ پروونسز سے ہٹا کے پرابلی جو فیڈریشن ہے اس کو زیادہ دیں گے۔ اٹس بیسیکلی پاور جس کو وہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں گے۔ تحریک انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم کو آئینی ترمیم قرار دے دیا۔ 365 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا، ترمیم کے ذریعے NFC کو صوبوں سے ہٹا کر فیڈریشن کے نیچے لایا جا رہا ہے۔ جوڈیشری کو مزید کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ترمیم سے آئینی حکومت اور آئینی عدالت کا قیام ہوگا۔ وفاقی حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لانے کی تیاری۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 نومبر کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ وزارت پارلیمانی امور نے نئی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی۔
पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती अमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया था। सेनेट इजलास कल से शुरू होगा। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल है। सेनेट में कामयाबी के लिए इत्तेहादी जमातों और आज़ाद अरकान की हिमायत अहम करार। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, अमरीका, चीन, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आई। चीन से CPEC फेज़ 3 पर पेशरफ्त जारी है। पाकिस्तान अब एक काबिल एतमाद आलमी शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी। इसके बावजूद हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। हमारी सिफारतकारी, इस्तेकाम, अज़्म और कुर्बानियों की अक्कासी करती है। दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर चुका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़रा चेयरमैन FPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 3 आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की, जो मईशत की दुरुस्त समत का सबूत है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मईशत के इस्तेहकाम की तौसीक है। अब हमारी तवज्जो पायदार ग्रोथ और स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर है। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, गुज़श्ता माली साल टैक्स टू GDP में 1.49% इजाफा हुआ। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 49 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया, सनती शोबे के लिए बिजली 16 रुपये फ़ी यूनिट तक सस्ती कर दी गई। गर्दशी कर्जा ख़त्म करने के लिए जामे प्लान लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को होंगे। ज़िमनी इंतखाबात NH 66 वज़ीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 57 मियांवाली में होंगे। सैलाब की वजह से पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुअख्खर किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को रिलीफ मिल गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल के मुताबिक दरख्वास्त में कानूनी तकाजे पूरे नहीं, दस्तखत और तस्दीक में भी खामियां पाई गई। पंजाब हुकूमत सरकारी निर्खों पर चीनी फराहम करने में नाकाम। लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 220 रुपये तक पहुँच गई। शहरियों का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। शहरियों ने इम्पोर्टेड चीनी का जायका भी नापसंदीदा करार दिया। पंजाब हुकूमत ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपये किलो मुकर्रर कर रखी है। अकबरी मंडी में 50 किलो इम्पोर्टेड चीनी की कीमत 8009 रुपये। शाहाना जिंदगी गुजारने वाले अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। सोशल मीडिया पर नबूदो नुमाइश करने वाले गिरफ्त में आएंगे। FBR ने बाज़ाब्ता कार्रवाई के लिए मुमकिन टैक्स चोरों की तफसीलात हेडक्वार्टर्स और मुतल्लिका रीजनल टैक्स दफातर को भिजवा दी। FBR ज़राए के मुताबिक ब्रांडेड कपड़े, बैग्स, घड़ियाँ इस्तेमाल करने वाले कुछ टैक्स दहिंदगान पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अपने टैक्स गोशवारों में नहायत कलील आमदन ज़ाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लातदाद गैर मुल्की दौरों और पुरतायुश जायदादों का एतराफ़ करने वाले कई अफराद ने अपने जमा करदा इनकम टैक्स गोशवारों में कोई नुमाया आमदन नहीं बताई। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने लेकिन गोशवारा जमा ना कराने वालों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची में बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इफ्तिताह कर दिया। कहा कि हमें समंदरी हयातियाती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मैशत होते। यूरोप, शिमाली अमरीका, जनूबी अफ्रीका समेत दुनिया भर से 178 मंदूबीन की मैरीटाइम एक्सपो में शिरकत। चीन, बरतानिया, इटली, तुर्किया, ईरान, मिस्र समेत 44 ममालिक के बहरी अमूर के माहिरीन भी शामिल। 28 इंटरनेशनल फर्म्स और 150 मकामी कंपनीज के स्टॉल्स भी सजे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मैरीटाइम एक्सपो मुल्की मैशत और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। समंदरी सनत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फ़वाइद हासिल होंगे। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस 6 नवंबर तक जारी रहेगी।
वज़ीर आला पंजाब से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली की आला सतह वफ्द की मुलाकात। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। मरीम नवाज ने मंसूबे में मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी कराई। क्रोम बुक में AI टूल किट जैसे जदीद सॉफ्टवेयर शामिल होंगे। वफ्द ने वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। बेनज़ीर हारी कार्ड सूबे के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, ये निज़ाम शफाफ और जदीद है जिसके तहत किसानों को खाद, माली मदद और हुकूमती ताउन बराह रास्त फराहम किया जा रहा है। बेनज़ीर हारी कार्ड स्कीम से न सिर्फ किसान खुशहाल होंगे बल्कि गंदम की पैदावार बढ़ने से मुल्क की मैशत भी मुस्तहकम होगी। लाहौर के शहरियों ने सर शर्म से झुका दिए। अलमनाक हादसे में 4 अफराद की हलाकत के बाद शहरी मशरूब से भरी बोतलें इकट्ठी करने में लगे रहे। किसी को भी इमदादी कार्रवाइयों में हाथ बटाने का ख्याल नहीं आया। शहरियों की जानिब से भरी बोतलें इकट्ठी करने की वीडियोस वायरल। रिश्वत के मुकदमे में NCCIA के 3 अफसर पुलिस के हवाले। लाहौर की अदालत ने मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने FIA के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। मुलजिमों के खिलाफ रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर फिर पहले नंबर पर आ गया। मजमूई AQI 406 रिकॉर्ड। माहिरीन ने फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दी। कई इलाकों में आलूदा ज़रात की मिकदार 750 AQI से भी ज़्यादा रही। स्मोक बढ़ने के बायस पंजाब के स्कूल्स कॉलेजेस के औकात कार भी तब्दील। स्कूल सुबह 8:45 पर खुले। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला। मज़ार शरीफ समेत कई शहर लर्ज़ उठे। इमारतें और घर गिरने से 20 अफराद जाँ भाग, 320 जख्मी हो गए। हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान का इलाका खलम था। ज़लज़ले के झटके तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान में भी महसूस किए गए हैं। मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस किए जाने पर खुशी का इज़हार। खबरदार किया, अमरीका नाइजीरिया में ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई कार्रवाई पर गौर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में ज़ाती तौर पर शिरकत न करने का ऐलान। बोले, अब दुनिया हमारे खिलाफ टैरिफ नहीं लगा सकती। टैरिफ ने हमें ज़बरदस्ती कौमी सलामती फराहम की है। T20 के बाद 50-50 का इम्तिहान। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई सीरीज से पहले खिलाड़ियों का शानदार फोटोशूट। शाहीन आफरीदी ने कहा कि बतौर कप्तान क़यादत करना एजाज़ की बात है। कोशिश करूंगा अपने रोल को अच्छे से निभाऊं। बाबर आजम की आखिरी इनिंग्स ने उसे बहुत एतमाद दिया होगा। फैसलाबाद 17 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी करेगा। इकबाल स्टेडियम में दोनों टीम्स की प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशक है।